सवाल आया है मन्नू गुरदासपुर से. I get stressed on very little things, even when sometimes I know that situation will get better very soon, but still I can't stop myself and fall into depression. I want to get out of this situation. When we give too much attention and importance to people and society, we have bought a one-way ticket to land of stress. It's a one-way ticket. You cannot come out then. When we pay too much attention on what others will say about me, that will give us a lot of stress. My point is, why are you so obsessed about others? Why can't you just focus on yourself? If I am focusing on myself, then for me others don't even exist. But when I am not focused on myself, then I am so concerned about everybody and I wish to please everybody and appease everybody. And now it has been proven that politics of appeasement is never successful. It fails. Right? Never ever try to appease. Never ever try to please. Think clearly. Know your stuff thoroughly. Prepare yourself properly. Then there is no reason for stress. When we are not prepared properly, when we have not gained knowledge about it deep enough, then the problem of stress is going to be big time in our life. One time somebody asked me, Guruma, you just walk on a stage and face thousands of people. Don't you feel stressed sometimes? I said, no. When I walk in a hall where the venue is filled with thousands of people, it's just 1,000 faces. Elementally, it is just 5 elements and the forms are all different. That's it. All human body or animal bodies are made of 5 elements. All bodies have one macrocosmic mind in an individual form. Mind has the same structure, right? Behind the mind there is intellect. Behind the intellect there is a true self, Atma. And Atma is not 2 or 3 or 4, it is just one. Even the one word is not appropriate, but still to explain, I have to say it is just one. So it is the oneness of the bodies, oneness of the mind, oneness of the self. So there is nobody who is a stranger or other. So from whom should I feel stress? जब आप अपने आप को सिर्फ एक शरीर मानते हैं, तो आपके इस एक शरीर के सामने फिर हजारों या लाखों या करोड़ों और अरबों शरीर और हैं. कोई आपसे आगे है, कोई बहुत अक्लमंद है, कोई सुंदर है, कोई तगड़ा है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है. तो अगर आप फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म के तल पर तो बहुत सी डिफरेंसेस होंगी और होनी भी चाहिए. इंसान कोई कार तो नहीं है ना कि सारी एक सी कारें निकल रही हैं. और सोचिए एक से ही बंदे और एक से ही बंदियां सब निकल रहे होते, दुनिया में कितनी कंफ्यूजन हो जाती. पर जैसे गाड़ियों पे नंबर लगाना पड़ता है ना, एक सी ही है, मानो फॉर एग्जाम्पल अगर कहें तो एक सी ही कारें, तो डिफर कैसे करते उसके नंबर प्लेट से. या उसमें जो पेपर्स हैं वो बताते हैं कि इसका मालिक कौन है. कार तो सब एक सी. और सोचिए अगर हम सब इंसान भी एक से ही होते तो हमें भी यहाँ नंबर प्लेट लगानी पड़ती.
नहीं तो कैसे पता चलता कौन कौन है, सब तो एक से हैं. बट वेन वी आर creating boundaries around us, I am this, now everybody is a competitor to you then. But if you break this boundary, सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं. तो जब सब अपने ही हैं तो फिर किससे हम मुकाबला करें, या किससे हम झगड़ा करें, या किससे हम लड़ाई करें, या हम किससे डरें, या हम किससे मोहब्बत करें. तो शरीर देखेंगे तो डर लगेगा. तो थोड़ा अपने विचार को पुष्ट करिए. जैसे अंधेरी रात हो तो हिलती हुई पेड़ की शाखा को देख के लगता है पता नहीं भूत है इसमें, तो छोटा बच्चा उससे भी डर जाता है. और कभी कभी छोटा बच्चा अपनी परछाई से भी डर जाता है. पर जब रोशनी आ जाए और अंधेरा जाए तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो कोई भूत है ही नहीं. अपनी ही परछाई को भूत समझ के आप डरते हैं. तो आप जब भी डरते हैं एक्चुअली हो वही रहा है, आप किसी दूसरे में अपने ही मन के भय की रिफ्लेक्शन को देखते और फिर आप डरते. तो इसका मतलब कोई नहीं आपको स्ट्रेस देता, स्ट्रेस ऑलरेडी आपके मन में है. क्यों है? दो वजह से. एक, मन में ज्ञान की रोशनी नहीं है, इसलिए परछाइयां भी भूत लग रही हैं. और ज्ञान की रोशनी हुए और अंधेरे में, हमारे एक महात्मा हैं, हमारे मित्र, वो अपने गुरुजी के साथ बहुत करीब करीब 14-15 साल शमशान घाट में रहे. अब शाम के बाद कोई शमशान घाट घूमने तो जाएगा नहीं. और वो वहीं पे रहे अपने गुरुजी के साथ. तो एक दिन हम लोग बैठे थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा स्वामी जी क्या आपको कभी कोई भूत कोई भूतनी दिखे? आप तो वहीं रहे हैं, 15 साल रहे. कहते ना भूत दिखा ना भूतनी कभी मुझे दिखी वहां पर. मैंने कहा क्या अभी कभी आपने कुछ जरा से भी डर महसूस किया? आप जंगल में थे, नदी का किनारा था, शमशान था. कहते नहीं, रात में तो कभी भी डर नहीं लगा. और हम तो कई बार कहते रात में नदी में नहाने चले जाते थे, पर कहते दिन में डर लगता था. मैं हैं दिन में, वहां की भूतनियां दिन में आती थी. कहते नहीं, ना दिन में भूतनी आती थी ना दिन में भूत आते थे, दिन में इंसान आ जाते थे. और वो कभी हमारा राशन चोरी करके ले जाते, कभी हमारे गद्दे चोरी करके ले जाते, कभी हमारा गिलास चोरी करके ले जाते, कभी रजाई चोरी करके. तो इंसानों से डर लगता था, ना भूत से ना भूतनी से. अब शमशान में वो रहे हैं. तो क्या ख्याल है मन्नू जी, आज रात को शमशान चला जाए? हैं? क्या ख्याल है? टेस्ट तो करो इसको. हमारे यहाँ पर 2-3 डॉक्टर्स हैं जो आश्रम में ही रहते. इनसे मैं एक बार बात कर रही थी. मैंने कहा आपने पोस्टमार्टम किया? बोले हाँ करना पड़ता था, कई बार किया है. तो मैं कहा फिर जब पोस्टमार्टम करते थे तो फिर क्या फीलिंग होती थी? कहती बस पहली बार डर लगा, बड़ा अजीब सा लगा जब काटा, और जब अजीब लगा, ऑर्गन सब देखे, और दे हैड टू इन्वेस्टिगेट ना व्हाई अ पर्सन हैज डाइड, एंड दे हैव टू डिक्लेयर दैट दिस इज द रीजन that the person died. अपने ही घर में कोई अपना ही रिश्तेदार कभी मर जाए तो उसकी डेड बॉडी के पास बैठने में लोगों को डर लगता है. पर जो डॉक्टर्स हैं, जो मॉर्चरी में काम करते हैं, इट्स ओके फॉर देम, राइट? अब आपको शमशान से डर लगता है, सब लोगों को लगता है. मैं जब आई थिंक सो 8th में थी, 8th में या 7th या 8th में थी, जब जिंदगी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस शमशान घाट के अंदर जाने का हुआ.
हम हमारे जो विद्या गुरु थे उनके साथ गए थे। हमें वो लेके गए और उन्होंने कहा देखो, बहुत ध्यान से देखो, वहाँ एक चिता ऑलरेडी जल रही थी। कह रहे सब देखो इसको, और इसी पे आज ध्यान करेंगे। और ध्यान ये करना है कि ये जो शरीर जल रहा है, ये शरीर किसी और का नहीं, हमारा ही है। क्योंकि एक दिन हमारा शरीर भी तो जलेगा। तो अपने ही जलते हुए शरीर को देखो तो कैसे एक एक करके सबसे पहले बाल जाते हैं, फिर चमड़ी जाती है, फिर जो भी फैट होता है वो, और जो अंदर लिक्विड होते हैं वो सब बबल अप होने लग जाते हैं। And then the hardest is the skull and the bones. And so long time the skeleton is visible, the skull is visible, the legs are visible, meaning just the bones part. So keep watching that. And know this, that everybody is going to die the same way and everybody will be burnt the same way. So you better learn the lesson. जिस शरीर से आप इतना प्यार करते हो, इस शरीर की हकीकत तो ये है। अब हम लोग वहां बैठे, and it was such a deep, moving experience. It was such a stilling experience. When I came back, I went straight to our puja room, and I just sat there, and God knows for how many hours I just sat in quiet and silence and stillness for so long. And that experience was so beautiful that after that, whenever I would have time, I would bicycle, go to that same cremation ground, walk in, and see if there is any, dead body which is being cremated. Very respectfully, I would just sit there and watch. And I would see, कितने बार देखा, मुर्दा आता है, फैमिली आ रही, सब रो रहे पिट रहे, फिर वो सब प्रोसेस किया, पूजा थोड़ा बहुत हुआ, पंडित ने किया, फिर वो लकड़ी में डाल दिया, फिर अग्नि क्रिया हुई, फिर वो मटके वाली क्रिया हुई, फिर कपाल क्रिया हुई, और फिर धीरे धीरे सब गए, और the dead body is just there, and dead body is actually not going to miss anybody. वो घर चले गए सब। मैंने कहा देखो, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये पत्नी, ये पति कैसे जान छिड़कते हैं। और अब जब शरीर में प्राण नहीं रहा, जब शरीर में जीव नहीं रहा, तो उस शरीर से किसी को प्रीति भी नहीं रह गई। तो क्या हमारी प्रीति उस शरीर के अंदर रहने वाले जीव से होती है या उसके शरीर से होती? जीव से होती। जीव है तो प्यार है, जीव नहीं है तो प्यार नहीं है। और जीव का स्वभाव क्या है? जीव किसी का भी नहीं होता है। जीव किसी का भी नहीं होता है। जीव जब तक उस शरीर में है तब तक उसको ये मैं हूं, ये मेरा है, ये इस शरीर से संबंधी मेरे हैं, सब ऐसा उसे लगता जरूर है। लेकिन जहां प्राण निकला, जीव तो पलट के कभी उस मरे शरीर में वापस नहीं आना चाहता। तो आप अकेले हैं जब आप मां के गर्भ में होते, आप अकेले हैं जब आप चिता पे होते हैं। पर गर्भ और चिता के बीच में एक लंबा ऐसा टाइम आ जाता है जहां लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे ही रहे, ये मेरे पास ही रहे, ये मुझे छोड़ नहीं जाए। पर ज्ञान की चमक, ज्ञान का प्रकाश क्या कहता है? तुम अकेले ही हो,